Previous video we had discussion regarding the order of reaction and molecularity. So as per syllabus we have the zero order reaction and first order reaction. So how the first order reaction works and how can we calculate the rate of the reaction with their equation and how the equation is derived. So let us discuss regarding the integrated equation of zero order reaction. If the zero order means if the order is zero, it means that in rate equation the concentration turns to the power zero. This we have to remember. Actually what is there? If the order is zero, the reaction is common. For a general reaction, reactant changes to the product. We have two types to write the rate of reaction. Rate is equal to change in the concentration of reactant with respect to time. This is negative sign which indicates the concentration of reactant decreases. So this is one equation for the rate. Then in second case we can write the rate is equal to K into concentration of R to the power 0. This R to the power 0 represents zero order reaction. This R to the power 0 means it represents zero order reaction. So this zero order reaction, if the reaction is zero order, so we can write rate equal to like this. And both equation 1 and 2 are the equation of zero order reaction. So we can equate both the equation. So if we equate both the equation, we get this equation. So what is there? D concentration of R by dt equal to K into concentration of R. So this equation, we know that any term having the power 0, the value is unity. So the value of R0, R to the power 0 is 1. So if we keep this 1 here, we get this equation. So by arranging this equation, if we arrange this equation, we get d into concentration of R, dt इधर आ गया, a minus इधर हो गया, so we get the equation 3. Now this equation is ready for integration. So if we integrate this equation number 3, we get this. So integration of this is R, integration of this is kt, and this I is the integration constant. This is integration constant. So this I is integration constant. So now if we want to write this equation 4 as it is, we have to calculate the value of I. So we need to know, हमको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो जीरो टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक अगर हो रही है तो लिमिट हम जीरो से एक पर्टिकुलर टाइम तक ले सकते हैं. हम समझ सकते हैं कि अगर टाइम जीरो था, if the time was zero, the concentration of R is R0. मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो concentration of reactant कम होगा, मतलब जीरो होगा ना. तो ये जो रिएक्टेंट का concentration है वो सबसे कम होगा. जीरो इनिशियल स्टेज पे होगा. जीरो मीन्स कम, मतलब है नहीं, ऐसा नहीं, इनिशियल स्टेज पे होगा. तो इनिशियल स्टेज पे होगा जब टाइम जीरो होगा. तो दिस बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट दिस. So R0 equal to minus K into T की value 0 into I. So from this equation we get the value of I, integration constant. R की जगह R0 है और T की जगह 0 आया, तो हमारे को R0 equal to I मिला. इसका मतलब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं यहाँ पर. So अगर इस इक्वेशन में पुटिंग इन द इक्वेशन 4 ये वैल्यू यहाँ अगर रखें, so we get R concentration of R equal to minus KT plus concentration of R0. ये वैल्यूज को रीअरेंज किया, so we get this equation at last, and this is equation to calculate the rate constant for zero order reaction or time for zero order reaction. So this equation is very important. So I have written this equation is very important. ये आपको ध्यान रखना है. Now if you see the equation number 5, this equation number 5 is the equation of straight line. Y equal to mx plus c. Y equal to mx plus c. Y means y axis coordinate,
m means slope, so this k minus, तो slope means minus रहेगा slope, so k t m x coordinate, and c is the constant, that c is the constant means intercept on the y axis. So if we plot according to this equation, we get the straight line, and this is the graph we get, where we can understand the concentration of reactant on the y axis, time on the x axis, and if the intercept on the y axis, that is the value, that is the r0, and the slope of this line is k. So this figure is important. ये आपको जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना उसमें आता है, 3-4 फिगर दी हुई रहेगी और आप लोगों को पूछेंगे कि इसमें से कौन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन की फिगर है, तो ये आप लोगों को कुछ समय आना चाहिए. सो दिस प्लॉट इज अगेन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इससे भी हम समझ सकते हैं. देखो इससे भी हम समझ सकते हैं कि सिंपली अगर ये हमारे सामने भी है तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ लिया गया है, टाइम इधर है, ये जितना बढ़ेगा यहाँ का, ये जो स्लोप आएगा उसका इंटरसेप्ट यहाँ पर वैल्यू, इससे भी हमको समझ में आता है. तो इसको अपने को ध्यान रखना है. इसके बाद देखेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Now we can take if such reaction where the zero order reaction, how much time it will take to complete half. कोई अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आधा होती है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और आधी रिएक्शन होने के लिए, बिकॉज एक्चुअली व्हाट इज देयर, हाउ व्हाई एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग दिस हाफ लाइफ पीरियड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रेडियोएक्टिव रिएक्शंस, and the radioactive element disintegrate its half of the portion in particular time. That time is fixed, because if we are getting any material from the archaeological source and we need to calculate the age, archaeological source से जमीन से खनन उत्खनन से वगैरह कुछ मिला, उसकी एज अगर कैलकुलेट करना है हमको, तो एज कैलकुलेट करते समय हमारे को उसके अंदर जिसकी भी जो भी चीज़ है, कार्बन का प्रोपोर्शन पहले कितना था अभी कितना है, या फिर कोई मेटल है तो मेटल का प्रोपोर्शन, ये सब देखना पड़ता है. जैसे पुरातत्व विभाग में जो भी पत्थर या फिर पेड़ वगैरह नीचे गिरे हुए फॉसिल के फॉर्म में, तो उसमें कार्बन को देखते हैं, जो रेडियो एक्टिव कार्बन था कार्बन 14 उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग. तो ये सब इसी से रिलेटेड है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने पढ़े, उस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हाफ लाइफ पीरियड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. देखो जैसा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड मींस इफ द टी इक्वल टू हाफ, मतलब टी हाफ, then simply if T is equal to T half, the concentration of reactant is also half. Okay, so let's see, if T is equal to T half, the equation of zero order reaction is this. we know इसको हमने 6 नंबर उधर दिया था, तो इक्वेशन हो गया R0 minus R upon T और K. Okay, so if the T is equal to T half, तो concentration of R भी तो आधा होगा, क्योंकि जीरो मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा हो जाएगा. R0 मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो इनिशियली बिल्कुल जिस समय टाइम जीरो था उस समय का कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आधा होगा तो वो इससे आधा हो जाएगा. इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 6 में पुट करते हैं तो वी गेट K is equal to R0 minus half of the R0. So R0 minus half R0, एक में से आधा गया तो आधा रह गया, तो 1 by आ जाएगा. ये टी हाफ को इधर लेके गए, के को इधर लाए, तो टी हाफ इधर आ गया, के इधर आ गया, तो R0 ऊपर रह गया और हाफ R0 ना, हाफ मतलब 2 नीचे आ गया, सो हाफ R0. सो वी गेट दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें काम का है. दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसमें एक बात अपने को ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में देखो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है उस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ही प्रोपोर्शन में ये
T half means T half is directly proportional to the initial concentration and inversely proportional to the rate constant. Inversely proportional to the rate constant. अभी एक्चुअली क्या होता है, हमें जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में ऐसा डाटा होता है दिया हुआ है, हम इसमें एक्चुअली इसमें कंफ्यूज होते हैं. हमारे पास डाटा दिया होता है ऐसे, ये है टाइम, इसमें दिया है जैसा टाइम, इसमें दिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, अगर ये रिएक्टेंट के बारे में दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये अलग अलग इसमें दिया हुआ है हमारे पास, अगर ऐसा डाटा है तो हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय. मैक्सिमम जगह बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इसमें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाइम है, टाइम 0 तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं है ना. जैसे कि वैसे अगर ये 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के बाद कुछ फिगर में देते हैं, मान लो 10 मिनट के बाद ये 5 हो गया, जो भी क्वांटिटी यूनिट होगा, 10 मिनट के बाद ये 5 हो गया, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो R0 है. R0 का एक काम करते हैं, समझने के लिए इसको हम फिगर में लिखते हैं, है ना. इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा. मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो 10 मिनट के बाद में मान लो 50 रह गया, इसका मतलब क्या होगा, फाइनली 50 हो गया. ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतना है. ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इस ये वाले पोर्शन को भी आप लोग ऐसा नजरअंदाज करो, ऐसा समझो कि सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं. ठीक है, लिखता तो मैं हूँ दोनों में, लेकिन आपको ये डाटा नहीं दिया है, ऐसा समझ के चलो. मान लो 20 मिनट के बाद, मान लो 20 मिनट के बाद ये 40 हो गया, और 30 मिनट के बाद ये 30 हो गया, 40 मिनट के बाद ये 20 हो गया, 50 मिनट के बाद ये 10 हो गया, और 60 मिनट के बाद ये 0 हो गया. मान लो ये डाटा है अपने पास, सिर्फ इफ वी आर हैविंग दिस डाटा ओनली, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, अगर यही डाटा अपने पास है, इसका मतलब ये डाटा अपने पास है, बट व्हाट अबाउट दिस डाटा, उस टाइम पे ये व्हाट इज दिस R, उस टाइम पे, दैट टाइम, तो 10 पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मतलब ये. तो ऐसे समय क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये इस डाटा को यहां पुट अप करते हैं. पहले अपने को ये कैलकुलेट करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब रेट इक्वेशन पढ़ेंगे ना उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा. एक्चुअली ये वैल्यू हो गई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को हमने को कैलकुलेट करना होता है. अभी जैसा मैंने लिखा नहीं, मैंने बोला आप ये समझ लो, लेकिन मान लो अगर दिया हुआ है तो ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 100 हो गया. तो इस दोनों डाटा के साथ चलना है अपने को. इसमें अभी अगर कंफ्यूज हो रहा हो आपको, तो जो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ओके.